Good evening, students. In today's session, we're going to study or learn about game programming practical number 1 to 5. So, in order to start your practicals of your game programming subject for TYBSc Computer Science Sem 5, we require few softwares that needed to be installed on your machine, and they are you need to install your Visual Studio 2019 or 2017 Community Edition. Unity 3D is required, but before that you have to download DirectX SDK from the link given in the description. For that I am just showing you how to download and proceed the things. I'm just copy pasting this thing, the link in this browser. As you can see, as per your specification of your computer or laptop, you can select the version. So in my system it is by default 64-bit. You can download. So they have given details. File size is 571 MB. Then we have system requirements, system supported, installation instructions, additional information, and so on. So in order to install that, you first need to remove these two files. Rather, if you have any other version than Visual Studio C++ 2010 x64 redistributable और Microsoft Visual Studio C++ 2010, इसके अलावा अगर आप लोग के पास कोई और वर्जन्स भी है फॉर Microsoft Visual C++ redistributable, even x32 is there, then you have to uninstall that. You can uninstall that from your control panel also, no issue with that. If you have Windows 32-bit, then simply uninstall this file. But I personally recommend to remove all the files that has Microsoft Visual C++ 2010 or any other version that is redistributable. Otherwise, it will give an error S103. How to check whether your DirectX is installed at proper location or not? Just wait for a second. I'm showing that. So in order to check that whether your DirectX is installed or not, go to local drive, C drive, obviously go to Windows. So in my machine I have already installed that software. So you can see under Windows.NET DirectX managed code, you can see. So we are mainly dealing with these three files of DLL, Direct3D DLL, DirectX, 3DX. Three files are mandatory for running your graphics program. So in order to perform this practical, we need to first start your Microsoft Visual Studio. So I'm just closing this Windows and I'm starting your Microsoft Visual Studio. Remember one thing, your Visual Studio is a heavily loaded software that has lots of components. So depending upon your system configuration, it requires some time to start. So don't get panic. So I have already performed this practical. 5 practicals I have performed, but still I'll start a fresh start. So I'm just creating a new project. As I said, it requires some time to boot or start because it is a heavily loaded software with lots of stuff and components across your cross platforms. So in order to select, we need to select Windows Form application. Select this and look for the same in this. दोनों सेम रहना चाहिए, इतना याद रखना प्लीज. Now going to next, make sure you place the solution and project in the same directory, otherwise it will give an assembly reference error. अगर ये नहीं करोगे तो assembly reference का error आएगा और वो जो exe फाइल बनता है आप लोग का, as you know, if you are aware of .NET framework, you have
two types of assembly references. That is your portable exe file is there, a portable executor file is there, and your DLL files are there. So any of the program, any of the assembly is missing, then it will create problems. So I'm just creating a GPPract 01. So I'm just keeping it simple by selecting .NET Framework 2.0 in order to what do you say, in order to support the lower versions of your .NET Framework also. So my project name is GPPract 01. So I'm just creating that thing. No issues with that. So we have to be patient till it's get created. So first practical is our aim is set up DirectX 11, Windows Framework and initialize Direct 3D devices. So in this practical, we are just learning the Windows Framework and initializing Direct 3D devices. So we have to create new project, select Windows Form application, select .NET Framework 2.0 and Visual C Sharp. Now few settings we have to do is, first setting is open this, go to the properties. As you can see, I'm here. Select this build event, and instead of this any CPU platform target, just simply select x86. Again, I'm showing you. Go to GPPract, go to the properties. Under the application, down that, beneath that you have build. Select platform target x86. See, basically we have selected an basic framework, initial framework of 2.0 of Microsoft .NET. So in order to support that, we require x86. So your system 32 will support, and 32-bit computers will also support. Then again, coming back to this solution practicals, we require few changes in form 1 designing. Simply click on this form. So inside this form, select, you can see there are lots of things are listed here, alphabetical, then properties. After that, you will find events. So select on events, click on the paint event in order to paint the frame. हम लोग को पेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, याद रखिए. Just click on this, nothing else. Simply done with this. Then we need to add few references as we have discussed. So 3 references we need to add: Microsoft DirectX, Microsoft DirectX Direct 3D and Microsoft DirectX Direct 3DX. तो ये कहाँ पे मिलेगा हम लोग को? We'll find that references located inside your DirectX managed code. So I'm just simply adding these things. You can select add reference. I'm showing it one more time. Just go through it. GPPract, click on add, go to reference. So you have lots of options to add a reference in assembly, project, share project, comp, browse and recent things. We are simply browsing that thing. So you have to browse for C drive, go to Windows, look for Windows Microsoft .NET folder. Inside the DirectX manage code, first option you will select, then Direct 3D DLE, DirectX 3D DLL and DirectX.dll. So just click on these things. Your references are added. You can cross check with this. Again I am showing you. Have a quick look at this. Add. फिर से एक बार देख लो सब लोग. Don't get confused. I'm just adding these references. Go to browse. Windows में जाना है. Go to Windows. Microsoft .NET framework देखना. DirectX manage code. Again select these 3 files: Direct 3D, Direct 3DX and DirectX DLL. I am cancelling this event because these files are already added here. So one more setting we need to apply is, so I'll show it afterwards, don't worry. So in order to write the code for this form,
We require several packages or modules inside this using system.txt windows. As you can see here, you can edit this coding, no issues. So in order to write the code, and just simply, in order to save our time, and just simply copy pasting this code itself, or you can just write that code at different parts. Make sure you're writing or you're pasting that thing properly. So our namespace is gppract01. So you have two things. As you can see, public partial class form1 initiated by your form, and public form1 is your constructor created for the same form. So it has already one constructor called as initialize components. So it is very mandatory thing. One more is there, init device is there. In order to initialize your devices and components, so I'm just writing micro directory dot direct3d dot device dot device. I'm creating an instance or object of this directx class inside your partial class. Remember that thing. Simply paste that thing is here. You can see now in public form1, you need to write one more component or one more constructor you have to write. Initialize component is already there. I'm not pasting it again. So any device I'm writing, it may give an error because we have not initialized that method. So in order to write that method, we first need to call for that other methods also. I'm just passing that things inside this. I'm pasting that thing. No issues. You can see my red mark is given. So this is .NET is very nice thing. I'm just keeping an object, creating an object. Make sure whenever you copy paste any code from any side or any uh, sources, spacing वगैरह check कर लेना बेटा please. Now you can see, hello, you can see one more thing. So a paint event is not generated. In order to print that or generate that, we need to again select the form designing, go to the event, inside that you will see paint is there. Okay, just select this thing and look for that event is there or not. Okay, I'm just selecting this thing. Now after completing these steps, no issues with that. One more method you have to add is form under paint. Rendering you have to add, otherwise it will generate an error. I'm not getting that rendering or paint event. Wait for some time. Just finding that thing. Just selecting this thing. Inside this event, just selecting the paint. Paint select करना आप लोग को सबको. It's not showing actually. Inside this properties, event select this thing. Okay. Now you can see rendering is there. I'm just simply pasting this. Now, after doing all this stuff and all these efforts, still you will get an error. I'll show you what kind of error it generates. You can see building is started, build started, no issues, but definitely you will get error because we need to unlock one more properties of this debug thing inside your Windows. You can see exception settings. One exception is there for your init devices. It says that loader lock is not unchecked. In order to uncheck that thing, again have a quick look over here. In order to
change the setting, ध्यान से देखना बेटा, go to debug, windows, inside your exception settings you can see manage debugging assistant, थोड़ा नीचे है, देखना पड़ेगा आप लोग को, सॉरी. inside this you will find a loader lock. क्या मिलेगा आप लोग को? you will find a loader lock whenever you perform any practical of DirectX that is relevant to your C Sharp or Visual Studio particularly, you have to uncheck this loader lock file. So I have done this thing. I am saving this solution. Again, I am recompiling that thing. You can see a nice output is shown on your screen. सब लोग को दिख रहा है, एक फ्रेमवर्क जनरेट हो गया, सेटअप कर दिया बेटा. हेलो. So what are the steps we have done for this thing, for setting up this nice framework? First, we have created a solution of Windows form. Then we have added three references: DirectX, DirectX 3D, DirectX 3DX. Then we have selected this form one design, added a paint event here. From these events you can see this is listed. तो ये सब बेसिक स्टेप है बेटा. जितने भी 5 प्रैक्टिकल्स तुम लोग करोगे तो उसमें तुम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा पेंट. देन व्हाट आई हैव डन इज आई वेंट टू जीपी प्रैक्ट, दैट इज माय सॉल्यूशन नेम. प्रॉपर्टीज में गया था, बिल्ड, change the target x86 and you will get a output for the same. Okay, so I'm just saving this thing. Now coming back, then next thing was we have to select this debug, go to Windows, exception setting. Under that exception setting you'll find manage code, manage debugging assistance. Inside that you have to uncheck this loader lock. That is very mandatory thing, otherwise it will generate an init device error. So I hope first practical is done and it is clear to you. If you have a doubt, so after posting this video to YouTube channel, my YouTube channel, you can write your doubts in comment section. Now in order to perform second practical, our aim is draw a triangle using Direct 3D 11. What is our aim is? Direct 3D 11. No issues with that, absolutely. So in order to create, I recommend to create multiple solution. हर एक प्रैक्टिकल के लिए एक एक सोल्यूशन क्रिएट करोगे, सो योर असेंबली गेट्स सेपरेटेड. असेंबली में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. विंडोज .NET फ्रेमवर्क देखना बेटा. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज विंडोज फॉर्म एपनेट .NET framework, go to next. GP Pract, I am giving a name as GP Pract 02. I am placing it, selecting a .NET framework. By default it is selected, and in order to create that I have created this solution. The first step what we will do is we have to add a references. Remember that thing, that is a very mandatory thing, otherwise it will give an error at the time of compilation. कहाँ से देखा था हम लोगों ने, ब्राउज कहाँ से किया था? गो टू सी ड्राइव, विंडोज, Microsoft.NET, DirectX manage code, Direct 3D, 3DX and DirectX DLL. I'm just adding that components, no issues with that. Second step मैंने किया था लास्ट प्रैक्टिकल में, I went to properties of my solution, build में गया था, platform target I have selected x86. Then most important thing, form one design. कोड लिखने के पहले एक बेसिक चीज है, ये डिबग में जाके आप लोगों को विंडोज का सेटिंग चेंज कर लो प्लीज, अदरवाइज इट विल गिव एन एरर. यू हैव टू अनचेक दैट लोडर लॉक or it will generate an error. Now coming back to this thing, we need to view this code. कोड देखना पड़ेगा. Simply adding some
graphical elements, graphical code for this thing. So I'm just using this graphic 3D and other stuff. I'm not copying a entire code over here and there. So GP Pract 1 is there, my namespace. You can see references are listed here. सब लोग देख सकते हो स्क्रीन पे क्लियर कट कितने रेफरेंसेस यहाँ पे है बेटा. Now simply I'm just pasting this thing directtext.device in order to initialize the devices, but make sure you're pasting it at a right place. और एक आध एरर आ भी जाता है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए. Be brave for facing that error, because without programming, without error, you can't be a good programmer. But make a habit of writing error, like you are repeating mistakes. Don't repeat same error for multiple times. Simply perform new error new time. Just pasting it here. You can see few exceptions can be there, like this device vertex format. और यहाँ पे करना है, कोई इशू नहीं आना चाहिए इसमें रेंडरिंग में. So present parameters are there. Swap effect, device, create flag, hardware vertex processing, vertex transformations and other stuff is there. Textures are there. Now ARGB, I hope you have studied this. मेरे कॉलेज में तो मैंने बताया ARGB क्या है क्या नहीं है. कलर कॉम्बिनेशन है. ARGB normally we have RGB color combination, but in ARGB we have alpha, red, green and blue. Remember that A stands for your alpha. Now here, see Visual Studio 2019 or 17 version is very nice. They are giving that hint or solutions for each and every exception. So it show potential hints. So I am adding a reference just जितना वो लोग सजेस्ट कर रहे हैं. कभी कभी वो तकलीफ भी हो सकता है बेटा. Now I have to select that event from this list as a paint event in order to get that output displayed on your system. अगर नहीं करोगे, अभी देखो ये मैं दिखा देता हूँ. अभी ये सिलेक्ट नहीं हो रहा बेटा, बिकॉज आई एम नॉट सिलेक्टिंग दिस थिंग. ठीक है, कोई इशू नहीं है. नॉट शोइंग दैट थिंग. आई थिंक आफ्टर बिल्डिंग दैट. अभी ये पेंट इवेंट ऐड नहीं करने पे क्या एक्सेप्शन आता है, यू कैन चेक. सिंपली आउटपुट तो आएगा, बट यू विल नॉट एबल टू सी एनीथिंग. व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज वी आर एक्सपेक्टिंग अ ट्रायंगल. बराबर है. हम लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था बेटा, एक ट्रायंगल यहाँ पे आएगा अच्छा सा, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है. तो इसका एक ही रीजन है कि पेंट इवेंट हम लोगों ने वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था. आई गेस अभी आना चाहिए. नॉट शोइंग. जस्ट सिलेक्टिंग द डिजाइन प्रॉपर्टीज. नाउ ये आएगा. हाँ, ओके ओके ओके. नाउ आई गॉट इट. यहाँ पे पेंट इवेंट भी नहीं आया और एक रेंडरिंग हम लोगों ने नहीं दिया. तो यहाँ पे आओ, पहले जमीन पे आओ, रिटर्न. देखो बेटा, प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए ना मैजिक की जरूरत नहीं होती है, लॉजिक की जरूरत होती है. तो कैसे आएगा लॉजिक? इज नॉट शोइंग दैट थिंग. I'm just adding things. Wait. तो यहाँ पे एक्सप्लोरर नहीं दिखा रहा है इसमें. So I'm just minimizing these things, error list and other stuff, in order to focus these things. Properties में गया, event में गया मैं. It has to display form 1, nothing else. एक फॉर्म उसका वो खाली दिखना चाहिए बेटा पेंट में. It has to be there. So I'm just saving this form. I do not.
दूसरा कुछ एरर आने जैसा है नहीं इसमें, बहुत सिंपल चीज़ है, खाली पेंट इवेंट ऐड करना है अपने को। हाँ अभी आया। वी नीड टू प्रेस एंटर, अ सिंपल थिंग, बट वी मेड इट कॉम्प्लिकेटेड। सो इन ऑर्डर टू रेंडर दैट थिंग, किसी भी चीज़ को गियर में डालना पड़ता है ना गाड़ी चलाने के लिए, तो वही चीज़ है बेटा। नाउ यू कैन सी योर आउटपुट। आया मस्त ट्राइंगल। व्हाट वाज आवर एम? हेलो। ड्रॉ ट्राइंगल यूजिंग डायरेक्ट 3D 11। एक नॉर्मल ट्राइंगल है, अच्छे से आया। यू कैन सी थ्री कलर कॉम्बिनेशन, A R G B, alpha, red, green, blue. So it is a combination of four colors: A R G B, alpha, red, green, and blue. Whenever we discuss about the color combination or color schemes, remember that thing we are discussing about: alpha, red, green, and blue color. सिंपल चीज़ है, आई गेस प्रैक्टिकल नंबर 2 में भी कोई तकलीफ नहीं है। ये थोड़ी सी पोजिशनिंग का एक बेसिक चीज़ है। ये सिस्टम डॉट ड्राइंग है, अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत आप लोग को ये सी शार्प वगैरह आता है तो ये कोड आप लोग को ईजी जाएगा। अनलेस एंड अनटिल आप लोग को सी शार्प नहीं आता है थोड़ा बहुत भी, ये तो कलर पोजिशनिंग है, नथिंग एल्स। देन दिस इज सिंपल methods we are using from this divides present. Then next practical is your texture the triangle using direct 3D 11. What we have to do is we need to texture the triangle. Now यहाँ पे थोड़ा सेटिंग अलग है, we need to make few changes in order to get the texture triangle. So I'm just closing this solution, close solution, you can see. So I'm just creating a new project like we did for the last two practicals. I hope सबको समझ रहा है. If you have any doubt you can comment. So I'm just writing GP track 03. Make sure this sync is checked, otherwise it will give an assembly reference error. Select, keep it basic because we are selecting x86 framework. यहाँ पे गए हम लोग GP Prac 3 किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, we need to add a references. We need to add a references. So few references need to be added. 3 references हम लोगों ने देखा था। Go to C drive, Windows। तुम लोग मास्टर हो जाओगे 5 प्रैक्टिकल तक आराम से, कुछ परफॉर्म करना लेकिन कुछ। If you have any difficulties or doubt, you can contact Direct 3D, Direct 3DX, and DirectX TLL. I am just adding these things. तो आ गए 3 रेफरेंसेस आप लोग के। नाउ गो टू दिस प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन का बिल्ड में जाओ, select this x86, no issues with that. One more setting we have to do is go to this debug Windows exception settings in order to perform the things. तो एक लोडर लॉक है जो इसको अनचेक करना पड़ेगा, नहीं तो वो लॉक करके रखेगा डिवाइसेस को। ये चीज़ याद रखना सब लोग। डन, नो इश्यूज विद दैट। वन मोर सेटिंग इज देयर, वेट फॉर अ टाइम, आई विल शो यू। लेट मी जस्ट show you the code about this thing. So simply I'm using this Microsoft DirectX. तो बाकी तो सब ऑटोमेटिकली आ जाता है बेटा, when you create a solution for that you can just see। बाकी खाली 2 फाइल आप लोग को याद से डालने पड़ेंगे, ठीक है। और एक चीज़ है जो कंपलसरी है ऑलमोस्ट ऑल प्रैक्टिकल्स में, you need to do these things। पार्शियल क्लास फॉर्म में डालना पड़ेगा आप लोग को ये सब चीज़ें। बता दो क्या क्या डाल रहे हैं हम लोग। व्हाट वी आर डूइंग इज कैन सी बेसिकली इट विल गिव एन एरर, नो इश्यूज। यहाँ पे स्पेस दे देना, वर्ड से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा तकलीफ हो सकता है क्योंकि वो अलग अलग पीसीज पे अलग अलग फॉर्मेट होता है। प्राइवेट माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट 3D डिवाइसेस वर्ड टेक्स्ट, देन प्राइवेट टेक्सचर। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टेक्सचर बना रहे हैं हम लोग। व्हाट इज अ टेक्सचर? बेसिकली यू ऑल नो
पब्लिक फॉर्म में गए बेटा, यहाँ पे इनिट डिवाइस करके बहुत जरूरी कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा, रिमेंबर, बिकॉज इनिशियलाइज कंपोनेंट्स इज देयर। मैं अभी ये बंद कर देता हूँ यहाँ पे, ये पूरा बंद कर देता, सो यू कैन इजीली डू दैट। अभी तो एरर ही देगा बिकॉज वी हैव नॉट इनिशियलाइज इट्स कंस्ट्रक्टर, या कॉल नहीं किया कंस्ट्रक्टर को, तो चिल्लाएगा ही, कभी मन दुखता है। ठीक है, नाउ आई एम जस्ट डूइंग दिस थिंग, पुल डॉट मैनेज। यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा आप लोग को, गारंटीड है, फॉर्मेट में आएगा ये बिट मैप में। अभी ये प्रेजेंट पीपी पे आएगा। अभी आप लोग भी प्रो हो जाओगे बेटा, थोड़ा थोड़ा देखते देखते, डोंट वरी, नो इश्यूज। नाउ एक चीज है, पेंट इवेंट आप लोग को जनरेट करना पड़ेगा। तो फिर वो पेंट इवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू जनरेट दैट पेंट इवेंट, गो टू दिस इवेंट, गो टू पेंट। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था उस पर, तो वो पेंट आ नहीं रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, सिंपल चीज़ थी, कभी कभी हम लोग चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बना देते। तो आ गया बेस्ट चीज़। नाउ ये सब जितना भी डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन एंड अदर स्टफ है, इधर से उठाओ, उसमें डालो। तो दिस डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट, डोंट वरी। अभी ये फिर से अंकल जी चिल्ला रहे, इनकी सुनो, एट दैट पोटेंशियल फिक्स, बेसिकली वर्जन का इशू, बाकी कुछ नहीं, हो जाएगा बेटा। अभी एक चीज है, एज यू कैन सी वन पाथ इज गिवन, e.tycs images and other stuff is there। अभी कोई भी एक चीज बताओ बेटा, अभी कोई भी चीज यूज करना है, सपोज यू वांट टू यूज समथिंग, बैंक के पैसे यूज करना, तो बैंक में अकाउंट में पैसे होने चाहिए ना। सिमिलरली ये प्रोजेक्ट में तुम लोगों का किधर मेरे को इमेज दिख रहा है कि आप लोग का नहीं दिख रहा है, बराबर है। सो वी नीड टू कॉपी पेस्ट और एड अ रेफरेंस ऑफ दैट इमेज। सो इन ऑर्डर टू दैट आई एम जस्ट गिविंग द पिक्चर। यहाँ पे मैं गया, मेक श्योर डाउनलोड डॉट JFF फाइल है, ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ था। इमेज एक है, JPG है, और यू कैन टेक इमेजेस, नो इश्यूज विद दैट। सो आई एम जस्ट कॉपिंग दैट थिंग, सिंपल चीज है, कॉपी पेस्ट भी होता है। गो टू दिस सोल्यूशन, पेस्ट इट हियर, नो इश्यूज विद दैट। दिख रहा है इमेजेस डॉट JPG। अभी ये जो सर्कस है ना बेटा, ये जो दिख रहा है आप लोग को, इसकी जगह पे इसका पाथ अगर ड्रैग एंड ड्रॉप होता है तो वेरी गुड, बट इट इज शोइंग, रुको जरा सबर करो। तो व्हाट वी विल डू इज जस्ट कॉपी द फुल पाथ एंड जस्ट पेस्टिंग दैट पाथ। अभी इसमें भी एक्सेप्शन आएगा, रुको जरा, टेंशन मत लो। अभी आया, बहुत लंबा चौड़ा पाथ है। अभी ये क्या हो रहा है, देखो वर्जन का डिफरेंस है बेटा, बाकी कुछ नहीं है। कुछ कुछ इसमें डबल स्लैश लेता है बैकवर्ड कंपेबिलिटी के साथ। कंपेबिलिटी एक वर्ड था जो मैं कब से बोल रहा था, तो ये अभी आ गया, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो अभी ये तुम लोग का परफेक्टली चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए। देखते क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मस्त आया टेक्सचर ट्रायंगल। ये थोड़ा इमेज अपना अलग है, यू कैन जस्ट डाउनलोड एनी इमेज। मेरे को थोड़ा डिसेंट कलर अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया था। ठीक है, so we have performed 3 practicals till time. Hello, I hope you are getting these things. If you have any doubt relevant to this practicals or any other subject of your computer science or BSc IT, you can contact me, no issues. Now do one thing, what we have to do is we have to perform 4th practical also. So I have mentioned one proper note, don't forget to add image into your solution with proper path specified. अगर ये प्रॉपर पाथ नहीं दोगे तो एक्सेप्शन देगा, इतना याद रखना बेटा। नाउ अभी ये सब को आई होप तुम लोगों ने थ्योरी में डिफ्यूज लाइटिंग, स्पेक्युलर लाइटिंग और एम्बिएंट लाइटिंग देखा रहेगा। स्पेक्युलेशन मतलब चमक धमक होती है, डिफ्यूज मतलब ये दिखा देता हूँ एक बार, आई एम जस्ट शोइंग द कंसेप्ट इन ऑर्डर टू प्रूव दैट थिंग्स। मेरे को थोड़ा जैम बोर्ड लगेगा बेटा, एक मिनट देखो, दिखा देता हूँ। जैम बोर्ड यहाँ पे रहता है, कैन सी जैम बोर्ड इज देयर। मेरे के प्रीवियसली क्रिएशन जितने भी रहेंगे वो सब रहेगा उस पर, दिखा देता हूँ स्पेक्युलर लाइटिंग और डिफ्यूज लाइटिंग में फ़र्क क्या है। तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू जैम, हैव अ लुक प्लीज।
अभी यहाँ पे देखना, अभी ये मेरा प्रोजेक्शन एरिया क्या है बेटा, दिस इज माई प्रोजेक्शन प्लेन। लेट्स से इतने एरिया पे ही प्रोजेक्शन आ रहा है, कितना आ रहा है, इसमें ये स्क्रीन है मेरा, यहाँ पे मेरा प्रोजेक्शन आ रहा है, बराबर है। इधर से लाइट आता है, ये लाइट सोर्सेस से, और ये एरिया पे एकदम इल्यूमिनेशन ज्यादा है। वो बाकी की चीजें क्या दिख रही है, थोड़ी ब्लरी या अंधेरा कायम रहे वो टाइप में दिख रहा है, दैट इज योर डिफ्यूज सरफेस और डिफ्यूज लाइट। स्पेक्यूलेशन में मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन काइंड ऑफ थिंग होता है, मतलब एक पोर्शन रहेगा वो चेंज होगा। एम्बियंट लाइटिंग में एक जैसा नहीं दिखता सब, अगर तुम लोग देख के जाओगे तो थोड़ा बहुत नजरों का खेल टाइप है। अब ये सब theoretical concept है, when I get time for revision I'll definitely cover that topics, no issues with that. So in order to perform this practical number 4, फिर से हम लोग को वही करना पड़ेगा जो हम लोग नॉर्मली किया है अभी। क्लोज दिस सॉल्यूशन, create a new project, select windows form.net. If you perform this practical along with me on your system, that will be beneficial for you and it will be satisfactory for me. So gp pact 04, make sure your name of that directory or solution must not collide or conflict with your other solutions। तो सेम नाम के एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही एक पाथ पे तुम लोग के दो सॉल्यूशन नहीं रह सकते। अभी तुम लोग अगर ये गड़बड़ करते हो तो ये ओवरराइड करेगा, और पहले के तुम लोग के जितने भी चीजें रहेंगी सेव, वो दैट विल गेट ओवरराइट, ओवर रिटर्न और ओवरलैप। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ऐड करेंगे रेफरेंसेस को। कौन से रेफरेंसेस, ब्राउज में जाओ, गो टू लोकल डिस्क सी, विंडोज में जाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाउ गो टू माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट, डायरेक्ट टेक्स्ट मैनेज कोड, फर्स्ट सिलेक्ट करना, डायरेक्ट 3D कंट्रोल करके करना, बट मेक श्योर यू डोंट कट पेस्ट दिस थिंग। कभी भी गलती से भी ये रेफरेंस DLL है। सो DLL में कंसेप्ट है बेटा, अभी आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, DLL कैन बी ट्रीटेड एज हेल और इट कैन बी ट्रीटेड एज हेवन। सिंपल चीज है, अगर DLL का मिसिंग हो गया, मिसिंग DLL आ गया तो हेल हो गया, और DLL का अच्छे से यूटिलाइजेशन करोगे तो दैट विल बी योर DLL हेवन। तो ये मैंने कर दिया ऐड 3 रेफरेंसेस, तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। नाउ गो टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ GP Pract, धीरे धीरे तुम लोग को भी समझ जाएगा क्या क्या सेटिंग्स करनी है यहाँ पे। आई एम सिलेक्टिंग x86, after that I am going to this debug, go to Windows exception settings, we need to unlock that loader lock inside their manage code exceptions। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, देख सकते हो सब लोग यहाँ पे लोडर लॉक को मैंने अनचेक किया। ये नहीं करोगे तो इनिट डिवाइस का एक एरर आएगा, बहुत अच्छे से आएगा ना। फॉर्म वन डिजाइन, अभी इसका एक व्यू कोड करना है अपने को, ये भी बाद में भी कर सकते हो या अभी भी कर सकते हो, इवेंट ऐड करने का पेंट में। फिर बाद में करोगे तो अच्छा है, अभी करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। अभी ये पेंट इवेंट दिख रहा है सब लोग को, ओके, पेंट दिख रहा है, सॉरी पेंट डाला, यहाँ पे आ गया पेंट, कोई इशू नहीं है। अभी अपने को बाकी का कोड भी देखना है। तो सिमिलरली इफ वी आर एक्सपेक्टिंग सम चेंजेस ऑन पर्टिकुलर इमेज, तो अपने को इमेज भी ऐड करना पड़ेगा ना, जैसे रेफरेंस हम लोगों ने इमेज दिया था, इमेज ही नहीं रहेगा तो किस पे चेंजेस करोगे, नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट, माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट टेक्स्ट और डायरेक्ट 3D जो रेफरेंस दिए उसके कुछ पैकेजेस हम लोगों ने मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिए। 3 रेफरेंसेस यू कैन सी इन पार्शियल क्लास एंड अदर स्टफ इज देयर। नाउ प्राइवेट सब बेसिक बेसिक चीजें हम लोग अच्छे से डालेंगे इसमें, वर्टेक्स का तड़का लगाएंगे इसमें, डाल दिया हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपरली। कभी 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 चिल्लाएगा भी बेटा, डोंट वरी। ये प्राइवेट कस्टम वर्टेक्स में, ये प्राइवेट में और कस्टम वर्टेक्स में थोड़ा स्पेस होना चाहिए, बाकी कुछ। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें डिवाइस एक लगेगा बिकॉज इनिशियलाइज कंपोनेंट करके बैठे यहाँ पे हम लोग। रिक्वायर दिस इनिट डिवाइसेस, नो इश्यूज विद दैट। अभी ये तो चिल्लाएगा, इसको कॉल किया लेकिन इसके भाई बहनों को नहीं लिया, कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया है,
So I'm just following that constructor or method, whatever you want to say, you can say. No issues with that. सिंपली यहाँ तक का कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी कोड टाइप करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं बेटा, इतना लेकिन टाइम नहीं मेरे पास भी नहीं ना, आपके पास भी। ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा तो सब लोग तकलीफ है। अभी ये चाचा चिल्ला रहे कि फॉर्मेट का एक्सेप्शन है, तो इनकी बात सुनो, ऐड रेफरेंस कर दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अभी एक चीज़ अपने को डालनी पड़ेगी रेंडरिंग के लिए। फॉर्म लोड के इवेंट में कुछ नहीं डालना है, पेंट में डालना पड़ेगा अपने को खाली रेंडरिंग। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट ऐड रेंडर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सॉरी, आई होप सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी जैसे हम लोगों ने एक इमेज लिया था बेटा, अच्छा वाला, इसको फिर से कॉपी पेस्ट करो, उसके इमेज में डालो, क्योंकि वो कुछ तो चीज़ परफॉर्म करने के लिए अपने पास वो चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अभी ये प्रेजेंट पैरामीटर का एरर आया, वेरी गुड, ये नज़र नहीं, नज़र हटी दुर्घटना घटी। अभी ये मैंने रेफरेंस दे दिया, कोई इशू नहीं है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे रेफरेंस की ज़रूरत भी है। स्टिल वी हैव एडेड रेफरेंस, इट्स आवर हैबिट, नो इश्यूज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, उसका कंपाइलेशन करते, लेट्स सी। मस्त, एक मस्त दिख रहा है तुम लोग को। कौन सा वाला इवेंट है बताइए? व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज इट? डिफ्यूज लाइटिंग। अभी एक देख सकते हो आप लोग कि एक पर्टिकुलर ये जो डायरेक्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे हेलो, तो एक काम करोगे, इसको स्क्रीनशॉट लेके मैं दिखाऊंगा तुम लोग को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट टेकिंग अ स्क्रीनशॉट, आई एम ओपनिंग अ पेंट। थोड़ा वीडियो लंबा भी खींचे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं बेटा, समझो कंसेप्ट को। कंसेप्ट वही है ना। अभी ये मेरा पेंसिल दिख रहा है, सब लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बेटा, ये जो सरफेस है ना, हेलो, ये तुम लोग को एक एलिमिनेटेड दिखेगा, बहुत मतलब अच्छा दिख रहा है, बट दिस रेस्ट पार्ट इज डिफ्यूज, इतना क्लियर नहीं, अंधेरा 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 दिख रहा है, पूरा दिख रहा है ना, ये बताने का था डिफ्यूज सरफेस। ओके, तो आई एम जस्ट मिनिमाइजिंग दिस थिंग, बंद कर दिया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई होप सो। अभी ये अपने हो गए प्रैक्टिकल नंबर 4। हाँ, एक चीज याद रखना बेटा, प्रैक्टिकल 5 तक तुम लोग सी शार्प में करना है प्रैक्टिकल्स। बाकी के जितने 6 प्रैक्टिकल ऑनवर्ड से दैट वी नीड टू परफॉर्म ऑन यूनिटी, उसमें से सबसे पहले यूएफओ वाला जो मॉडल है, दैट इज नथिंग बट 27 स्टेप्स का कुछ है, तो थोड़ा उसमें ज़्यादा लेंदी हो सकता है तुम लोग का। जैसे टाइम मिलेगा ट्राई टू अपलोड दैट थिंग। तो प्रैक्टिकल नंबर 5 इज लोडिंग मॉडल इनटू डायरेक्टएक्स एंड रेंडरिंग। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपना स्टेप्स। फर्स्ट वी नीड टू क्लोज द सॉल्यूशन, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, .NET framework. When you practice this thing by yourself, believe me, you will be master of this. You will love game programming. क्योंकि एक नॉर्मल डेवलपर का जितना सैलरी नहीं है बेटा, उससे कई गुना ज़्यादा तुम लोग का गेम प्रोग्रामर, गेम टेस्टर और बाकी गेम के जितने भी महानुभव है उनका रहता है। GP पैक्ट 05 ये ऐड कर रहा हूँ मैं। सेम सेटिंग्स आई एम अप्लाइंग हियर, नो इश्यूज विद दैट। उसके बाद सबसे पहला चीज रेफरेंस। इफ यू डोंट ऐड दिस रेफरेंस, देवता नाराज हो जाएंगे। कौन से? ग्राफिक के देवता, जो डायरेक्टएक्स में हम लोगों ने इंस्टॉल करके रखे। विंडोज में जाओ, माइक्रोसॉफ्ट .NET में जाना बेटा, डायरेक्टएक्स मैनेज कोड में फर्स्ट इसमें सिलेक्ट दिस 3 फाइल्स, तुम लोग को भी आदत हो जाएगी। ओके, ये रेफरेंस ऐड कर दिया। नाउ गो टू GP pract, go to properties, go to build, you can see x86, okay, no issues with that। अभी जो बेटा मैंने एक फाइल जो यहाँ पे रेफरेंस दिया है, उसका जो क्वालिटी है या भी टेक्सचरिंग है, उस पर इतना ही इफेक्ट नहीं दिखेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। यू कैन सिलेक्ट एनी अदर इमेज ऑल्सो, तो उस पर थोड़ा इम्पैक्ट अच्छे से दिखेगा। कि अपने पास टाइम नहीं इतना, तो JPG का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा मेरा। तो ये मैंने चीज़ें कर दी, बेसिक चीज़ें। नाउ वी नीड टू ऐड दिस रेफरेंस अगेन।
in order to perform this practical. So you can take anything. ये ज़रूरी नहीं कि मैं ये एक ही इमेज दिखा रहा हूँ तो एक ही इमेज लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. आई एम जस्ट पेस्टिंग दैट थिंग. पेस्ट कर दिया यहाँ पे, लोडर को अनलॉक कर दिया, बाकी सब चीज़ें x86. नाउ कमिंग बैक टू योर फॉर्म वन डिज़ाइन. एक इवेंट में जाना, ये सब मैंडेटरी थिंग हम लोग कर लेते, देन विल मूव टू द कोड. दिस योर लास्ट प्रैक्टिकल फॉर द डे. पेंट पे जाओ, पेंट पे, पेंट पेंट. तो आए पेंट पे, इंटर किया भाई साहब ने, हो गया, कोई प्रॉब्लम. चलो मूव फॉरवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब जस्ट दो खाली फॉर्म तुम लोग को याद रखना है, बिकॉज वी आर गिविंग एन असेंबली रेफरेंस, और ये पैकेजेस, ये मॉडल हम लोग को डालना बहुत ज़रूरी है. अगर ये नहीं डालोगे तो तुम लोग को जैसे नॉर्मली पैकेज या मॉडल के एरर आते हैं वो सब आते रहेंगे. लेकिन अपने पास इतना टाइम है कि अब ये सब एरर देखो नहीं, तब ये पार्शियल क्लास में डाल सकते हो. व्हाट इज ए पार्शियल क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये सब बेसिक है, तुम लोग कर सकते हो अच्छे से, नो इश्यूज. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल. तुम लोगों ने फिर एफवाईएस में किया क्या, फिर नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ो पढ़ो, टाइम है. इनिट डिवाइस, इनिट फॉन्ट, लोड टेक्सचर, ये थोड़ा 3-4 मेथड हम लोगों ने ज़्यादा के ले लिए. भाई साहब को भूख ज़्यादा लगी है, ज़्यादा अच्छी, ठीक है ना. अब ये चिल्लाएगा, इनिट फॉन्ट, इन डिवाइस, चिल्लाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके भाई बहन को नहीं बुलाया तुम लोगों ने तो वही होगा ना. नीड टू यूज दैट थिंग्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट प्रॉपरली. अभी इसके बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, जस्ट कॉल दिस मेथड्स, नो इश्यूज विद दैट. यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, प्रेजेंट पैरामीटर. ये तो भाई साहब कब से चिल्ला ही रहे, अपने को फॉर्मेट का एक एरर आएगा अपने पास. अरे नहीं आया, वेरी गुड. हाँ कोड बाकी है, तो फॉर्मेट का एक है. यहाँ पे थोड़ा बेटा डिवाइस का एक एक्सेप्शन है अपना, वो तो रहेगा. जो इमेज अगर रेफरेंस हम लोगों ने दिया वो डालना है अपने, रिमेंबर दैट थिंग. यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने क्या किया है, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डन रेंडरिंग. क्या किया हम लोगों ने, एक रेंडरिंग चीज करना है. रेंडरिंग मतलब रेडी टू यूज के लिए उसको कॉल करना है. इन्वोक समझते हो ना, इन्वोकेशन. अभी ये खाली चेंज करना पड़ेगा ये इमेज को बेटा. तो इमेज पाथ इन ऑर्डर टू सिलेक्ट, ये अपना इमेजेस, मेरे नाम अजीब ही रहते हैं वो सब. गो टू द कॉपी फुल पाथ, यहाँ पे पेस्ट करना, सॉरी यहाँ पे पेस्ट करो. ओके अब ये साइड चिल्लाएंगे नहीं, चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे, बिकॉज इट रिक्वायर्स डबल कॉलन. क्या चाहिए, डबल कॉलन. we require double colon for that thing. So just simply provide, जो मांग रहा है दे दो बेचारे को, कोई इशू नहीं होना चाहिए. So I'm just saving this thing. Let's hope for the best and we will get a desired output. So texture, invalid data exception. Okay. टेक्सचर में प्रॉब्लम है, इट वाज अनएक्सपेक्टेड. कुछ तो गड़बड़ है. तो टेक्सचर टेक्सचर तो सबको किया, क्या प्रॉब्लम है इस भाई साहब को, क्या सज्जन को तकलीफ क्या है. देखते चलो, इस पे कभी कभार हो जाता है टेक्सचर में. हाँ ये कलर्स टू एक लाइन पे डालोगे तो बेस्ट है, कोई इशू नहीं है. कुछ रह गए के स्टेप्स, रिकॉल मॉड्यूल. ये टेक्सचर जो किया है, ये जो किया है डिवाइसेस, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. एक ये तो आ गया, डॉट सोर्सेस वगैरह, तकलीफ नहीं चाहिए, इसलिए एक लाइन ले लो इसको, कभी कभार हो जाता है ये सब. पैरामीटर्स भी ले लिया, दिस तो ये ठीक है. क्रिएट फ्लैग, ये तो कोई इशू नहीं है.
मेरी प्रैक्टिकल तो परफॉर्म कर लिया, रेंडरिंग हो गया, ये कलर बैक भी डाल दिया, सब अच्छे से हो गया। मैं इसको देखा नहीं जाता, एक मिनट रुको। एक मिनट, ये सब सेव कर लिया मैंने। कभी कभी ये क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है सॉल्यूशन को। टेक्सचर ओके, डायरेक्ट 3D अनहैंडल एक्सेप्शन, व्यू डिटेल्स, डायरेक्ट 3D इनवैलिड डेटा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन सेटिंग। आई गेस मेरे रेफरेंस में कुछ कमी रह गई है शायद, एक बार फिर चेक करते। डायरेक्ट 3D, 3DX, ओके 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 ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक फाइल मिसिंग है अपना बेटा यहाँ पे, सो इन ऑर्डर टू ऐड दैट थिंग, ये इस तरह के एरर वो एक्सेप्शन और रेफरेंस में आते हैं। डॉट नेट में जाओ, डायरेक्ट टेक्स्ट मैनेज कोड, डायरेक्ट 3D DLL, डायरेक्ट 3D DXS, another stuff is there। ऐड कर दिए यहाँ पे, आई होप सो विल बी देयर। एक्सेप्शन हैंडल प्रॉब्लम इसका, रिपोज सोर्स, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझा। अरे यार, ये भी तो ले ले मेरे भाई। हाँ, सो यू कैन नोटिस एक बैक स्लैश भी बहुत तकलीफ दे सकता है, ये कहने का ये चीज है। सो वेरी गुड, we have successfully completed 5 practicals of this game programming subject। तो जो भी चीज़ें हैं, अगेन रिकैप, क्विक रिकैप, क्या क्या लगता है अपने को। डायरेक्ट टेक्स्ट का सेटअप कहाँ से मिलेगा बेटा, यहाँ से मिलेगा डायरेक्ट टेक्स्ट। देन विजुअल स्टूडियो 2019 विथ सम कंपोनेंट्स, वो तुम लोग को ऐड करने हैं। देन यू कैन जस्ट सिंपली ऐड थिंग्स लाइक यू ऐड रेफरेंसेस, वो कहाँ पे कौन से फोल्डर में, विंडोज सी ड्राइव में जाना, डॉट नेट फ्रेमवर्क विंडोज में जाओ, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट, देन गो फॉर डायरेक्ट टेक्स्ट मैनेज कोड, सिलेक्ट द डायरेक्ट 3D, डायरेक्ट 3DX एंड डायरेक्ट टेक्स्ट। ये 3 फाइल तुम लोगों को बहुत ज़रूरी है। बाद में हम लोगों ने क्या किया था एक बार फिर दिखा देता हूँ, जस्ट शोइंग दैट थिंग अगेन। बिल्ड पे जाने का तुम लोग का, प्रैक्टिकल्स पे जाओ, प्रॉपर्टीज में जाना अच्छे से, बिल्ड में जाके यहाँ पे जो टारगेट सेट करते हो इट हैज़ टू बी x86, बिकॉज हम लोगों ने 2.0 लिया। यहाँ पे फॉर्म पे जाने का, पेंट इवेंट, यहाँ पे ये थंडरिंग टाइप दिख रहा है ना, पेंट में जाने का, एंटर कर देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वी हैव, ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, विंडोज में जाने का, एक्सेप्शन सेटिंग में जाओ, गो टू दैट थिंग लोडर लॉग, ये कहाँ पे रहता है दिख, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। मैनेज डिबगिंग असिस्टेंट करके कंसेप्ट है, इसके ये हिडन रहता है, तो जाने का यहाँ पे, गो टू दैट थिंग एंड डिससिलेक्ट और अनसिलेक्ट लोडर लॉक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई होप सो इट वॉज क्लियर टू यू। आई एम जस्ट डूइंग स्टफ, so that's it for today. Hope we will meet soon. I'll be posting that Unity videos from practical 6 to practical 10. Vuforia and others practicals are there. So if you have any doubt, kindly refer my site, or you can connect me to that Telegram group list that is linked to my site. So thank you so much. Have a good day.